अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट थी और सारे जो एक्टर्स हैं वो सारे मेरे मतलब मेरे साथ के हैं, बहुत सारे मेरे थिएटर के टाइम के हैं, दिल्ली जो हम लोग थिएटर करते थे। और स्क्रिप्ट जो थी उसमें बहुत ही आप अगर फिल्म देखेंगे बहुत लाफ्टर्स हैं और बहुत ही लाइक फैमिली फिल्म है। जैसे अमूमन मैं करता हूँ फिल्में वैसी नहीं है ना। तो इसमें बच्चे बूढ़े हस्बैंड वाइफ सिस्टर ब्रदर सब आके इसको बैठ के एंजॉय कर सकते हैं इस फिल्म को। ये एक रीज़न था मेरे करने का, क्योंकि मुझे ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो डार्क फिल्में कलर के हिसाब से मिलती हैं टाइप में तो ये फिल्म ऐसी नहीं है, तो इसमें आप बेखौफ जाके इसको देख सकते हैं। तो ये एक रीज़न था इसको करने का। और दूसरा मेरा एसोसिएशन रहा है मेरे डायरेक्टर से, बाबू मोशाय भी हमने की थी। तो एक दूसरा रीज़न ये था कि एक दूसरे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है हम लोगों की, समझ जाते हैं हम, आंखों में इशारे से काफ़ी हो जाता है हमारा काम। I mean, when I was like, I have to play Dimple on the film, I was like super excited. I mean, this is not a cliche answer because I was like, yaar, script badi kamal ki thi. When I read the script, I didn't leave the script till I finished it. Yes. In the middle, sometimes when you read scripts, you're like, हाँ 4 पेजेस पढ़े, फिर एक कॉफ़ी पी ली, फिर 5 पेजेस पढ़े, फिर कुछ और कर लिया. This is not one of those scripts. I think the writer needs to be given the most credit. I feel it's written so beautifully. And of course, yeah, the amount of talent on this film, the cast, I was like, जब जोगी ने casting की थी and Kushan, who was part of the casting, I was like, what a film, what a casting. And of course, working with Nawaz for me was, gosh, finally I'm going to work with someone who's phenomenal when it comes to the acting genre. So for me, I was like, okay, a bit nervous because I would have to perform at least half as good as him. So I was like, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत कोशिश करनी पड़ेगी to live up to that standard. ये जो लोग होते हैं ना, जो मुझे इनके सामने जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये इनके सिर्फ कहने के लिए होता है। जब परफॉर्मेंस आप देखेंगे ना इनकी, तो इनका जो टैग लाइन है, जब फाड़ू वो फाड़ फूड़ के चली गई ऐसा। ये वो लोग हैं जो एग्जाम से पहले बोलते हैं कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है। Can I just say, this is my favorite part in interviews when I do it, and when he praises me, I'm like, yaar, ek minute, sunne to do. So yeah, I mean, this is the best compliment that I could have ever got when he actually called me and he said, "Maine film dekhi, I loved your work," and I was like literally flying because that was like the gold medal coming from him, talking about my performance. Yes. Okay, having said that, of course the team, Kushan directing it and everybody, of course first time with him, but I thought the whole team was fabulous. The producer Naeem ji putting in so much effort making this film, everything, music. I mean, I want to mention the whole cast and crew, they put in a fab job. So yeah, I mean, super excited. Or film, I feel, was meant to make people laugh. जब मैं ट्रेलर देख रही थी मुझे बहुत हंसी आई. So I'm thinking people will like it too as much as I've loved working on the film. First of all, I think I'll mix it up with जो नवाज सर ने कहा, नेहा ने कहा कि it was the opportunity. I think नईम सर और कुशान सर ने जो opportunity दी to play such a different character, I think वो मेरे लिए was a very healthy and good challenge. मुझे याद है, it was the first day of shoot and मेरा first shot जो था was with नवाज सर. So of course we all know how great of an actor he is. तो उनके साथ जब वो shot देना था, I was actually more nervous than actually performing. But then एक बार जब वो shot हो गया and both of them, Neha and Nawaz sir, they're very giving actors. उनका कभी ऐसा नहीं है कि हाँ ये मेरे डायलॉग्स है, ये मेरा पोजीशन है, ये मेरी लाइन्स है. It's always about give and take. So I have grown as an actor working with them, and of course Kushan sir, your direction, it really helped me a lot. And when it comes to the film, जो जुगाड़ नवाज सर के कैरेक्टर करते हैं नेहा के कैरेक्टर के लिए और जो रिजल्ट होता है वो ऑफ कोर्स आप लोग को 12 तारीख जाके देखकर ही पता चलेगा. मैं नहीं चाहता कि आप लोग कुछ रिवील करूं बिकॉज इट्स अ वेरी फन फिल्म, बहुत अच्छी कहानी है एंड इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. While working for Babu Mocha, I realized something, that he has a fabulous sense of humor. Yes. And even in very serious scenes, he comes up with one-liners, with stuff which makes the scene very, very different from what was originally imagined. Yes. So I think that is something that really I thought that there's a part of him which people hasn't seen much, underutilized part of him, and I think that
obviously that was the first thing. That's the reason why it started off how Jogida started off. Neha, I think, I'll just go back. I saw a story of her on Instagram, which was of a music video she had done. और मुझे मैंने उसको स्क्रिप्ट भेजा, उसने फ़ोन करके मुझे डांट दिया. उसने बोला ये देखो बाबू मोशाय के जैसे तो नहीं होने वाला ना फिल्म. तो मैं बोला नहीं ये अलग फिल्म है, अलग है. So yeah, it was great working with them. It was an experience. I remember that call very well, and I'm like, yaar, this is the first director who's actually found me on an Instagram reel. I'm like, yaar, Instagram पे मेहनत करो. Thank you so much, कुशान जी, नवाज सर, नेहा, मीमो सर. मैं आपको सच बताऊं, एज प्रोड्यूसर जब इतनी बड़ी कास्ट के साथ आप फिल्म कर रहे होते हैं तो बड़ा डर लगता है, पता नहीं फिल्म में क्या होगा. मैं बताऊं कि पूरा शेड्यूल में मैंने कभी महसूस नहीं किया कि इतने बड़े कास्ट के साथ हम फिल्म कर रहे हैं, एक फैमिली की तरह. इनफैक्ट अक्सर ऐसा हुआ, बिकॉज मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं, कि नवाज सर और नेहा जी, कुशान सर हमारे घर आ जाते थे, तो हमने पूरी फिल्म में ऐसा महसूस किया कि एक फैमिली की तरह. एंड नए प्रोड्यूसर को जिस तरह से सपोर्ट किया पूरी की पूरी कास्ट ने और जितनी रिस्पेक्ट दी, मैं तो बहुत खुश हूँ. और मुझे एक यकीन है कि 12 तारीख को हमारी एक फिल्म पॉजिटिविटी लाएगी और लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस फिल्म को देख के. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच कुशान जी, नवाज सर, नेहा जी, मीमो, गालिब साहब, एंड फाइनली संपदा, अनिल सर, किरण जी. इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर था. बहुत ज़्यादा प्रेशर इसलिए था क्योंकि नवाज़ भाई की तरह मतलब मेरी भी पिछली फिल्में डार्क रही हैं और बहुत मेरे ऊपर एक ठप्पा सा लग गया था. मैं एडल्ट फिल्में लिखता हूँ, मतलब मुझे लगा कि फैमिली फिल्म मैं नहीं लिख सकता क्या, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. और फिर इतने अच्छे एक्टर्स हमारे पास थे और उनके लिए हमें एक फैमिली फिल्म लिखना है और वो भी कॉमेडी भी हो, उसमें ह्यूमर भी हो, तो बहुत बड़ा चैलेंज था. लेकिन नवाज़ भाई का एक बाबू मोशाय के टाइम पे हमने एक चीज़ देखी थी, कमाल की स्पॉन्टेनिटी है, कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है. वो एक चीज़ को अचानक इतना ज़बरदस्त कन्वर्ट कर देते हैं ना, वो हम लोगों के नज़र में था. और उसके साथ फिर मुझे लगता है कि एक चीज़ आगे बढ़ती गई और हम यहाँ तक पहुँच गए. So Kiran has been the creative producer on the film, and come Kiran. Okay. So yeah, because without her and without Ghalib Saab, I think the creative force doesn't get completed. Whatever the film you're seeing, and good or bad, is the three of us. And I think the amount of fun we had making this film, I think the audience is really going to enjoy it. If they have even half the fun that we had, I think we've achieved it. So I just like to wish Naeem bhai the very best. He's a new entry into our industry, and I wish him all the success. And I hope that the audiences give it the love it deserves. जब शादी नहीं करनी होती तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में गिनाया जाता है कि मैं ये भी लेता हूँ, वो भी लेता हूँ. वो शोले का एक सीन है ना, बहुत अच्छा, कि मेरा दोस्त तो इतना टाइप में, तो यहाँ खुद ही बोल रहा हूँ मैं कि भाई इतना ख़राब हूँ. इससे अच्छी और क्या बात हो सकती, लेकिन वो तब भी पीछे पड़ी हुई है उस फिल्म में. ऐसा दिखाया गया है फिल्म में. एक बार जुगाड़ किया था, ऑडिशन में गया था मैं फ़ोटो लेके, तो यार मैंने ये रोल मिल गया. तब फ़ोटो चलते थे, फ़ोटो, और इंस्टा तो था नहीं तब, है ना, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक ये सब थी नहीं, तो फ़ोटो दे देते, फ़ोटो और रिज्यूम देते थे अपना. तो रिज्यूम तो मैंने दे दिया, हाथ से लिखा हुआ था कि मैं एक्टर हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, ये मेरी एज है, ये मैं हूँ. फ़ोटो जब फ़ोटो लेने की बारी आई तो फ़ोटो बोले फ़ोटो दिखाओ, तो फ़ोटो एक पड़ा हुआ था मेरी जेब के पीछे, मुड़ा हुआ. हाँ. तो मैंने उसको ऐसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खुल नहीं रहा, वापस फोल्ड हो जा रहा था, फिर खोलूँ फोल्ड हो जा रहा था, ऐसा हो रहा था. तो कैसे कैसे खोल के दिया, उसने देखा मेरा फ़ोटो, उसने बोला दफ़ा हो जा अभी यहाँ से. जिस आदमी के पास फ़ोटो भी नहीं है उसको हम कैसे क्या कर लेंगे उसका. इस तरह का हुआ था एक बार मेरे साथ, तो वो भी जुगाड़ फेल हो गया था. मतलब इस तरह के जुगाड़ किए रोल पाने के लिए, बट ऑलमोस्ट सारे ही फेल हुए. ऑडिशनिंग की जहाँ तक बात है, हर फिल्म के लिए जुगाड़ करती हूँ, बट आई मीन ऑडिशन करती हूँ, बट सम आर गुड, सम आर बैड. आई फील लाइक गॉड्स गॉट अ बेटर प्लान. तो मुझे लगता है कि जो फिल्म आपके नसीब में होती है वो आपको मिल जाती है. वाह क्या बात है. और जो आपके नसीब में नहीं होता वो आपको नहीं मिलता. खेलने का ऑफकोर्स बहुत मौका मिला, क्योंकि डायलॉग्स भी ऐसे थे, बहुत सारी इम्प्रोवाइज भी हुई चीज़, और क्योंकि एक्टर्स इसमें अमेजिंग एक्टर्स हैं सारे, चाहे वो संजय भाई हों और मेरे थे, चाहे वो घनश्याम हों, और इतने सारे एक्टर्स हैं
मेरे आसपास के दोस्त ही हैं सारे, तो उनके साथ एक होता है कि एक लाइक मीमो है या नेहा है, इनके साथ ऐसा होता है एक सिक्योरिटी, एक सिक्योर सा लगता है माहौल कि भाई मेरे से अगर कुछ ऐसा हो गया तो उसको संभाल लेगा वो। कॉमेडी में ऐसे ही होता है कि बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियसली भी निकलती हैं, है ना। तो वो मज़ा तो आया, फन फिल्म थी। और दूसरी बात ये, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इंटेंस कैरेक्टर करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में थिएटर के दौरान आई थिंक 150-200 प्लेस जो थे किए मैंने, वो सारे कॉमेडी ही थे। मैं, राजपाल, विजय राज, हम लोगों का ग्रुप था थिएटर के दौरान, हम सिर्फ कॉमेडीज़ ही करते थे। बट जब मैं यहाँ आया उसको कॉमेडी मिलने लगी, मुझे इंटेंस, मेरे चेहरा देख के मुझे इंटेंस कैरेक्टर मिला। अदरवाइज कॉमेडी में एक्सपर्ट थे हम लोग उस वक्त पे थिएटर के दौरान। सच बताऊँ, इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि इस तरह का रोल था ये कि इसकी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं थी। सेट पे जाके जो डायरेक्टर ने बताया, क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी हुई है, और दूसरे जो डायरेक्टर हैं, जो को एक्टर्स हैं, उनके साथ ऑन द स्पॉट क्या केमिस्ट्री बैठती है, रिहर्सल्स में क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बजाय इसके कि घर पे मैं बैठ के कुछ दूसरे कैरेक्टर होते हैं जिनके लिए प्रिपरेशन की जाती है, जैसे मंटो हैं या ठाकरे की मैंने, उसके लिए प्रिपरेशन की जाती है। बट इस तरह के रोल के लिए प्रिपरेशन नहीं, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है, कॉमन सेंस होना ज़रूरी है, और आपका डायरेक्टर, आपकी राइटिंग, को एक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे। हम लोग किसी बात पे अड़ जाते हैं फिर, लेकिन अल्टीमेटली उससे हम जिस नतीजे पे पहुंचते हैं वो बहुत अच्छा होता है, ये हमारा ऐसा मानना है। तो हम लोग उसके लिए कभी हिचकते भी नहीं हैं, हम लोग अपने डिफरेंसेस के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, हम समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, और वो समझते हैं कि मतलब वो क्या कह रहे हैं, और हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो एक अच्छी चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। और उसमें हमारे साथ किरण जी का बहुत बड़ा हाथ है। ये सिर्फ हम 2 लोगों की टीम नहीं है, हम 3 लोगों की टीम है, और हम तीनों द पीस मेकर। ये हम दोनों के बीच में समझौता करवाती है। उन्होंने बोल दिया, सम अप कर दिया। एक्चुअली यही है कि वो जो झगड़े होते हैं या जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उससे कुछ अच्छा निकलता है, और मतलब वही अल्टीमेटली आप काम करते हैं कुछ अच्छा निकालने के लिए, सो वो सॉल्व हो जाता है। तो ये रोल आया था हम लोग के पास, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि इतना चैलेंजिंग रोल मिला। एंड देन जब कुशांत सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, कुशांत सर एंड किरण मैम ने, वी आर एक्चुअली शॉट 2 days फॉर द फिल्म बिफोर, बट जब कोविड का लॉकडाउन हो गया था, देन वी हैड टू पुश इट। तो मुझे अभी भी याद है, इट्स अ वेरी फनी स्टोरी, व्हेन कुशांत सर हैड कॉल मी टू द ऑफिस, मुझे लगा था कि सर बोल रहे कि मुझे बुला रहे कि तुम अभी इस फिल्म में नहीं रहोगे, क्योंकि मेरे साथ वो बहुत बार हो चुका है। लाइक आई हैव एक्चुअली साइंड फिल्म्स एंड इन द एंड ऑफ द डे उन लोग बोलते हैं कि तुम इसमें हो नहीं। बट आई वाज लाइक, आई टोल्ड मॉम, देखो मॉम, आई थिंक ही इज कॉलिंग मी बिकॉज ऑफ दैट। बट देन व्हेन ही कॉल्ड मी इन द ऑफिस, उन्होंने बोला हम तुम्हारा लुक पूरा चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज जो कैरेक्टर लिखा है सर ने, जो हमने शूट किया था, इट वॉजंट मैचिंग द कैरेक्टर। बिकॉज जैसे डिम्पल का कैरेक्टर है, नवाज सर का कैरेक्टर है, इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ देम। तो उन्होंने एक्चुअली बैठ के मेरा पूरा लुक बदला, एंड एज यू सी इन द फिल्म, दैट इज़ वॉट द कैरेक्टर इज़। एंड देन फिर जब फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज टू द वे ही टॉक्स, द वे ही सिट्स, सब कुछ में आई थिंक सर और मैम ने मुझे हेल्प किया। एंड दैट इज़ द रीज़न आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट दिस कैरेक्टर, बिकॉज वन साइड यू हैव नवाज सर, वन साइड यू हैव नेहा, एंड देन उसके बीच में ही इज़ नॉट अ कबाब में हड्डी, इज़ द इंटायर कबाब प्लेटर, यू नो। तो वो चैलेंज था, बट इट वाज वेरी वेरी फन। जब आप लोग देखोगे 12 तारीख को, आई थिंक यू ऑल विल रिलेट। सी, डे बाय डे आपको सीख ही मिलती है, हर रोज़ नया एक्सपीरियंस होता है, नए लोग होते हैं, और आपकी जो क्राफ्ट में इजाफा ही होता है, आपके थॉट में इजाफा होता है, मतलब आप प्रोग्रेस करते हैं। और वो अगर अब मैं अगर 20 साल पहले की बात करूं, तो 20 साल पहले वाली तो एक्टिंग मैं अब नहीं कर सकता हूं, कि 20 साल का एक्सपीरियंस लेके भी साथ में चल रहा हूं। तो यही है, सीख यही है कि हर रोज़ बदलते रहना ज़रूरी है। आपके थॉट बदलते हैं, आप बदलते हैं, आपकी हर चीज़ बदलती है, तो एक्टिंग भी बदलती है आपकी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, वैसे एक्टिंग भी बदलती है आपकी। मैं शायद पहले मेरी अप्रोच कुछ और थी, आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले एक्टिंग को लेके आज कुछ और हो गई, और मैं भी आने वाले वक्त में कुछ और होगी। हर बार बदलता रहूँगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक स्टिक होके या एक तरह के किरदार, मैं अगर कोई मुझे बोले कि तुझे मैं सुपरस्टार बना दूंगा, लेकिन एक ही तरह का रोल करना पड़ेगा, मैं अपने गोली मार लूँगा, सच बता रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊँगा और छोड़ दूँगा, किसी दूसरे फील्ड में चला जाऊँगा। एक तरीके से मैं करता नहीं जाऊँ, मैं सुपरस्टार है कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं एक तरीके से तो नहीं कर पाऊँगा। मैं जितनी भी कोशिश करूँगा, हर बार नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूँगा,
चाहे वो फिल्म 1 रुपए में हो, चाहे 2 करोड़ की फिल्म हो, चाहे 10 करोड़ की, चाहे 12-15 करोड़, कितने भी, चाहे मुझे फीस मिले ना मिले, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, तब तक मैं ज़िंदा हूँ। वरना क्या है, तो ज़िंदा रहते हुए भी आदमी मर जाता है, वो सब मैं नहीं करना चाहता। तो ये अप्रोच मेरी इस तरीके की आती जा रही है। अभी मैं एक फिल्म करके आया हूँ फ्रैंकफर्ट में, आप यकीन कर सकते हो उसमें 10 लोगों की यूनिट थी, सिर्फ 10 लोग थे उसमें, और इतना डीप काम, बहुत बड़ी फिल्म नहीं लेकिन बहुत डीप फिल्म है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट, और एट द सेम टाइम मैं एक फिल्म कर रहा हूँ साउथ की सैंदा हो, जो बहुत ही करोड़ों करोड़ की फिल्म है। तो ये एडजस्टमेंट आपकी बॉडी में, आपके थॉट में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्टर बनने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर तो भाई इमेजेस हैं, किसी पे कुछ लगा हुआ है नाम के साथ, स्टार के साथ, कोई मेगा है, कोई ये है और कोई वो है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कोशिश करता रहूँ, हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहूँ। ऐसे तो रोज़ ही आता है, बट स्पेसिफिकली इस फिल्म के दौरान जब मुझे फिल्म मिली कि मैं डिम्पल का किरदार प्ले कर रही हूँ, दैट वाज वन बिग मोमेंट। सेट पे एक्चुअली आके पहले दिन की शूट ख़त्म करके भी वो मोमेंट होता है, बिकॉज यू आर स्कैर्ड कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला है। दैट वाज द सेकंड डे, एंड ऑफ कोर्स थ्रू इट, उसके बाद जब हम सब कंफर्टेबल हो गए शूटिंग के दौरान, तो इट वाज, आई थिंक एवरी डे वी एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग द फिल्म। मुझे लगता है कि जर्नी ज़्यादा ज़रूरी होती है as compared to what your final goal is. So I've enjoyed the whole journey. मेरे लिए जो गिरा सारा रा was the whole journey of the film.